A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. In previous lecture, the topic we have done was about the shareholders and members. And in that chapter, we have discussed about the that who is a member, how to become a member, what are the modes by which a person can become a member or a shareholder of a company. So, by subscription, by subscribing his name to the memorandum of association, a person can become a member of a company. By application, by transfer of his shares to some other person, by succession, by estoppel. So these are the ways by which a person can become a member. Then number of members, that what is the minimum requirement of members in different companies. So मैंने उसमें आपको बताया कि a public listed company में minimum 3 members are unlisted company. If the public company is unlisted, minimum members required are 3. If a company is a public listed company, then the minimum members required are 7. For a private company, the requirement of members, minimum requirement is 2, and for single member company, definitely it is 1. And if a company is a company limited by guarantee and an unlimited company, the number of members, the minimum number of members shall be decided as specified in the articles of association. And then I've discussed about the rights and duties of members, about the liabilities to be held by the members. फिर मैंने आपको बताया कि how does a person cease to become a member? By transfer, by forfeiture of shares, by sale of shares, by death, and by winding up of a company. और finally हमने discuss किया था about the register of members. And मैंने आपको बताया कि हर कंपनी के ऊपर every company must have a register of its members which will contains all the particulars of the members. And ये था हमारा पिछला topic जो कि हमने thoroughly detail में discuss किया था. Our today's topic is about the meetings of the companies and other proceedings. So, the Companies Act provides for different meetings. और उसमें meetings of shareholders में जो होती है हमारे पास होती है the statutory meeting, the annual general meeting, and the extraordinary general meeting. The statutory meeting, उसके बाद annual general meeting commonly known as AGM, and extraordinary general meeting is to be known as EGM. Class meetings, under certain circumstances, the court can order certain other meetings. Other meetings, meetings of the creditors and meetings of the debenture holders. ये कुछ और नौयत की meetings होती हैं, लेकिन mainly जो हमारे पास meetings होती हैं वो होती है the statutory meeting, the annual general meeting, and the EGM, extraordinary general meeting. अब हम देखेंगे सबसे पहले कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन सी होती है, ये कब कंपनी होल्ड करती है, इसके अंदर जो रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको कि हम द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं, उस रिपोर्ट में क्या शामिल होता है. सो सबसे पहले देखते हैं द स्टैट्यूटरी मीटिंग. याद रखें आप कि कंपनी में 3 किस्म की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. अब आपने गौर ये करना है
कि कौन सी मीटिंग कौन कॉल करता है, कब कॉल करता है और उसमें उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, क्योंकि एट द एंड आपको हो सकता है इन तीनों मीटिंग्स के सैलिएंट फीचर्स बताने पड़े। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब कब कॉल होती है, कौन इसको कॉल करता है और इसके अंदर क्या अहम फैसले होते हैं। सो ये तमाम चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप तीनों में डिफरेंशिएट कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टैट्यूटरी मीटिंग। Every public company shall hold a general meeting of the members of the company called a statutory meeting. And that meeting, the statutory meeting, is to be held after 3 months and before 6 months from the date of entitlement to commencement of business. So, from the date of entitlement to commence the business. अब आपने गौर किया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होती है? स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है 3 महीने के बाद और 6 महीने से पहले पहले। अब ये टाइम पीरियड हम कब से शुमार करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एंटाइटलमेंट टू कमेंस द बिजनेस ऑफ अ कंपनी। And this statutory meeting shall approve a report, and that report is called a statutory report. The statutory report shall be sent to all the members of the company at least 21 days before the statutory meeting. यानी statutory meeting के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है एंड दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कंपनी के तमाम मेंबर्स को भिजवा दी जाती है 21 दिन पहले बिफोर द स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है, क्यों ये रिपोर्ट मेंबर्स को भिजवाई जाती है? सो द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल इंक्लूड अंडर सेक्शन 157 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 total number of shares allotted, total number of shares allotted to the members, distinguishing between shares allotted for cash, other than for cash, and the consideration for which they have been allotted other than for cash. यानी सबसे पहले इस रिपोर्ट में दर्ज होगा कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कितने शेयर उसमें से कैश पे इशू किए हैं और कितने कैश के अलावा किसी भी और कंसिडरेशन के तहत, किसी भी और उसके तहत, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इशू किए हैं। यानी उसमें वो कैश नहीं लेंगे बल्कि कोई और मुआहदा कंपनी और मेंबर्स के दरमियान हुआ होगा और कंपनी ने उनको कैश के बजाय शेयर्स इशू किए होंगे। तो सबसे पहले ये एक बात है जो कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लाजमी शामिल होनी चाहिए, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। फिर टोटल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड। अब जो शेयर्स अलॉट किए उस पे कितना कैश लिया है कंपनी ने, इस रिपोर्ट में इसका क्लियरली जिक्र होना चाहिए। समरी ऑफ रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स, particulars of directors, chief executive, company secretary, auditor and legal advisors. अब जब भी किसी कंपनी की आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कंपनी के डायरेक्टर के कवायफ क्या है, नाम, पता, वल्दियत, नेशनैलिटी, ये तमाम बातें पर्टिकुलर्स में दर्ज होती हैं। और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ऑडिटर कौन है, लीगल एडवाइज़र कौन है। सो ये तमाम बातें हमें पता चलती हैं बाय द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, बाय स्टडिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। उसके बाद दिस रिपोर्ट शैल इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ कमीशन पेड और टू बी पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी शेयर्स पर अगर कभी कमीशन देती है, रिमेंबर अपने पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कंपनी में इशू शेयर्स ऑन कमीशन, कंपनी में इशू बोनस शेयर्स, डिस्काउंटेड शेयर्स, शेयर्स ऑन प्रीमियम। सो अगर कभी कंपनी कोई शेयर्स कमीशन पे इशू करती है, जो कि कंपनी को इजाजत है कि वो कमीशन पे शेयर्स इशू कर सकती है कि जी मेरे इतने शेयर बेच दो, मेरे इतने शेयर्स ले लो और इसके जवाब में आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। सो
उस कमीशन के जो पर्टिकुलर्स हैं जो कि दिए जाएंगे, पेड और टू बी पेड, दैट फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स, दैट मस्ट बी मेंशन्ड इन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में दर्ज होगा द एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कि जी ये कंपनी के मुआहदे हैं, इसको हम कैरी ऑन करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, और जिन मुआहदों को पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, कंपनी के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिस पे हम अमल दरामद नहीं करेंगे, जब हमने उसका रिपोर्ट में जिक्र कर दिया है तो हम बताएंगे भी कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट दिस कॉन्ट्रैक्ट। The reason of not carrying out must also be mentioned in the statutory report. So, statutory report में कंपनी अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र करेगी, जिस पे अगर वो अमल दरामद करती है उनका भी, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो वो पूरे नहीं करती उनका भी वो जिक्र करेगी, with the reason for not carrying it out. So, this was the स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो कि पब्लिक कंपनी होल्ड करती है आफ्टर 3 months एंड बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटाइटलमेंट टू कमेंस द बिजनेस, और उसके अंदर एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है और उसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो मैंने आपको बताया। सो प्लीज जहन में रखिएगा कि जब भी स्टैट्यूटरी मीटिंग का क्वेश्चन आपको करना हो, आपको ये समझना हो, तो आप सबसे पहले ये देखें कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन सी होती है, कब कॉल होती है, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या इंक्लूड है। ये आपको आ गया, समझा आपने, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का क्वेश्चन आपका हो गया। द अदर इज द इम्पॉर्टेंट मीटिंग हेल्ड इन अ कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज द एनुअल जनरल मीटिंग under section 158 of the company's ordinance 1984. Annual general meeting वो मीटिंग होती है जिसमें कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी होते हैं। सो यूजुअली जो कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो 18 महीने के अंदर अंदर होता है। किस दिन से लेकर? फ्रॉम द डेट ऑफ द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, और उसके बाद साल में एक दफा, एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। सो पहली दफा एजीएम जब होती है वो 18 months के अंदर अंदर होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन 18 months। बार बार मैं दोहरा रही हूं, पहली एनुअल जनरल मीटिंग 18 months है और उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाती। उसके बाद की एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन दी जा सकती है, बट वो भी 30 days से ज्यादा की नहीं। लेकिन पहली एनुअल जनरल मीटिंग 18 महीने के अंदर अंदर होती है फ्रॉम द डेट ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन एंड लेटर ऑन वंस इन अ कैलेंडर ईयर। Subsequent meeting shall be held within 4 months from the closure of its financial year or 15 months from the last meeting, whichever is earlier. अब इसमें से जो भी पहले टाइम आता है हमने उसको देखना है, जो टाइम पहले आता है। कौन से 2 टाइम्स? क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अब उसके बाद फर्स्ट AGM has been held and for the subsequent AGM हम देखेंगे कि जी जो क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, जब उसके फाइनेंशियल ईयर का क्लोज हो रहा होगा, या 15 महीने, इसमें जो भी टाइम पहले आता है उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर होल्डिंग द सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। द SECP इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको कहा ना कि एनुअल जनरल मीटिंग वो मीटिंग है जिसमें कि एक्सटेंशन हो सकती है, यानी आप कह सकते हैं कि जी हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कर दें, हमें कुछ और टाइम चाहिए। हम अभी, कंपनी कह सकती है कि हम अभी अपना AGM एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, वी नीड एक्सटेंशन इन टाइम। सो इसके लिए कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि 2 अथॉरिटीज़ हैं 2 मुख्तलिफ केसेस में जो कि AGM में एक्सटेंशन की इजाज़त दे सकती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान
एजीएम में एक्सटेंशन की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ एसईसीपी देगी जब कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी, और रजिस्ट्रार बाकी कंपनीज के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकता है। सो याद रखिए इस बात को जहन में कि द एसईसीपी in case of listed companies and the registrar in case of other companies may extend the time for holding of AGM. No extension of time can be granted to any company for holding of the first annual general meeting after incorporation. For subsequent AGM, the period of extension cannot be exceed 30 days. यानी पहले एजीएम तो अपने टाइम पर होगा, 18 महीने के अंदर होगी, लेकिन सब्सीक्वेंट एजीएम के लिए रजिस्ट्रार और एसईसीपी एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, एसईसीपी एक्सटेंशन देगी। अगर कंपनी कोई और कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, तो रजिस्ट्रार इज एलिजिबल, ही इज अलाउड टू गिव एक्सटेंशन इन दी होल्डिंग ऑफ AGM, but that extension in any case cannot exceed 30 days. यानी 30 दिन से ज्यादा की एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अब AGM का के जो नोटिस है वो एटलीस्ट 20 days नोटिस शुड बी गिवन टू मेंबर्स। अब आपने 21 दिनों का नोटिस तो देना है members को for holding the AGM. In case of listed companies, such notice shall also be published in an Urdu and an English newspaper having circulation in the province in which the stock exchange of that company is situated. यानी जो कंपनी है, जिस प्रोविंस की कंपनी है, उस प्रोविंस जिस प्रोविंस में जिस प्रोविंस के स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उस इलाके में उस प्रोविंस के अंग्रेजी और उर्दू के अखबार में ये जो नोटिस है ये पब्लिश कराना है। AGM of a listed companies is held in the town in which the registered office is situated. And remember this thing कि AGM is called on the order of the directors and not of the members. AGM को हमेशा directors कॉल करते हैं, members कॉल नहीं करते। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि at least 21 days notice should be given to the members, और उसको शाया करना है अंग्रेजी और उर्दू के अखबारात में, उस कंपनी जहां पर कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज है उस इलाके में। और उसके बाद AGM of listed companies is held in the town in which the registered office is situated, and AGM is always called on the orders of directors and not of the members. In case of default क्या पेनल्टी होगी? हर वो ऑफिसर या कंपनी जो जिम्मेदार है, जिसने जानबूझकर ये गलती की है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो वो जितनी भी पिछली AGM से रिलेटेड मैंने आपको प्रोविजंस बताई, वो उन प्रोविजंस के पे कंट्राडिक्शन हुई, सो देयर इज अ पेनल्टी। So in case of default, the company and every officer who is responsible for this, who is willfully a party, shall be liable in case of listed companies to a fine not less than 50,000 rupees. 50,000 rupees and not exceeding 500,000 rupees. यानी 50,000 से कम का नहीं और 500,000 से ज्यादा का से ज्यादा नहीं, यानी कम से कम 50,000, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, इतना ही इन पे फाइन होगा अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो। एंड टू फर्दर फाइन नॉट एक्सीडिंग 2,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। यानी AGM से रिलेटेड प्रोविजंस में जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ने क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, वो तमाम प्रोविजंस, अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट है on the part of company or and every officer who is a party
to that willful negligence. So if a company is a listed company, so उस पे जो फाइन होगा वो कम से कम जो होगा 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, और फर्दर फाइन होगा हर रोज़ के हिसाब से 2,000 के हिसाब से, पर डे 2,000, जब तक कि ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करता है, जब तक कि ये गलती की तस्हीह नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाता, ये डिफेक्ट ख़त्म नहीं हो सकता, तब तक फ़ाइन देना होगा। और अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, in case of any other company, to a fine not exceeding 100,000 rupees and a further fine not exceeding 500 rupees for every day during which the default continues. यानी ये जो मैंने आपको अभी फाइन बताए हैं, फाइन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड फाइन इन केस ऑफ अदर कंपनीज, ये फाइन कब होते हैं? इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। जब कोई कंपनी के पार्ट पे कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो ना सिर्फ कंपनी बल्कि कंपनी का ऑफिसर जो इस गलती का मुर्तकिब होता है, जिसने जानबूझ के किया होता है, उस पे फाइन लगता है। Now what is EGM under section 159 of the Companies Ordinance 1984? Extraordinary General Meeting। हर वो मीटिंग जो कि स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं है और एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, तो वो कहते हैं हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कौन कॉल करता है, किसके रिक्वेस्ट पे ये कॉल की जाती है? एजीएम को तो कॉल करता है डायरेक्टर्स, तो ईजीएम को कौन कॉल करता है? मैं आपको शायद पिछली दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू में या ये जो थोड़ा सा मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि जो ईजीएम होती है ये यूजुअली द ईजीएम इज़ टू बी कॉल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, वो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमने ईजीएम करानी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करानी है, तो फिर डायरेक्टर्स मेंबर्स के कहने पे ये मीटिंग कॉल करता है ऑन दी मोशन, और डायरेक्टर अपने मोशन पे के लिए भी कॉल कर सकता है, बट यूजुअली ईजीएम इज टू बी कॉल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स and through the directors. So EGM under section 159, who may call the EGM? The extraordinary general meeting may be called by the directors on their own motion, shall be called by the directors on the request of members representing not less than 1/10 of the voting पावर्स। यानी कम से कम 1/10 वोटिंग पावर जिन मेंबर्स की हो, वो डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि डायरेक्टर ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करें, तो तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर मेंबर्स के कहने पे कॉल करता है। द ईजीएम मे बी कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट इफ डायरेक्टर्स डू नॉट प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग विद इन 21 days of dispositing the requisition। अब मैं कंपनी की मेंबर हूँ और मेरे साथ कुछ और मेंबर्स हैं, and we are having 1/10 of the voting powers, and we are continuously requesting the director to please call the extraordinary general meeting, but the director is not listening, the director is not calling the EGM, the extraordinary general meeting, then in this case the members, the requisitionists, they may call the EGM by themselves। अब जो डायरेक्टर नहीं कॉल कर रहा है EGM को, तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की है EGM की, जो मेंबर्स हैं, जो रिक्विजिशनिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो खुद भी EGM कॉल कर सकते हैं, लेकिन कब? विदिन 21 days of depositing the requisition। जब उन्होंने रिक्विजिशन जो रिक्वेस्ट थी वो डिपॉजिट की थी, उसके तब कम से कम 21 दिन के अंदर अंदर, मतलब 1 जनवरी को रिक्वेस्ट फाइल की
कि जी डायरेक्टर्स को कहा कि जी आप EGM कॉल करें, डायरेक्टर ने कॉल नहीं की। अब द मेंबर्स विद इन 21 डेज, अब 1 जनवरी को एप्लीकेशन गई है, अब उसके बाद मेंबर्स ने कुछ इंतजार किया, अब 21 दिनों के अंदर अंदर दे मे कॉल द EGM बाय देमसेल्व्स, बट द टाइम फ्रेम इज 21 डेज। अगर 1 जनवरी को उन्होंने रिक्वेजिशन दी थी तो 21 जनवरी तक ये खुद कॉल कर सकते हैं। इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग विद इन 21 days, the case is actually like this, that the directors, the members will give at least 21 days to the directors. डायरेक्टर 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करें तो ठीक है, the members will have to wait for 21 days actually. And if the meeting is not to be called within 21 days by the directors, then the members, the requisitionists, are allowed to call the EGM by themselves. So, सबसे पहले क्या करना है, EGM जो कि डायरेक्टर के कहने पर मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर डायरेक्टर कॉल करता है, लेकिन अगर डायरेक्टर कॉल नहीं कर रहा 21 दिन के अंदर अंदर। सो पॉइंट को समझिए, मैं आपको ये एक्चुअली इस तरह से है कि द डायरेक्टर विल कॉल, जब डायरेक्टर को रिक्वेस्ट आई, 1 जनवरी को डायरेक्टर को रिक्वेस्ट आई, अब डायरेक्टर के पास 21 दिन है, 21 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टर विल कॉल द EGM, extraordinary general meeting. But if the directors do not proceed to call the meeting within 21 days, 21 days of depositing the requisition, यानी 21 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर ने खुद कॉल करनी है, और डायरेक्टर ने 21 दिन के अंदर अंदर कॉल नहीं की, तो उसके बाद the requisitionists, the members are allowed to call extraordinary general meeting. The requisition must be signed and state the object for calling the meeting. जो requisitionist है वो जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं, जो रिक्वेजिशन दे रहे हैं, उसको वो साइन करेंगे और उसके साथ वो बताएंगे कि why we want to call this EGM. They will give the reason for calling EGM. अब डायरेक्टर देखेंगे कि वाकई ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है, वाकई कोई इसकी ग्राउंड्स बनते हैं जिसके लिए कॉलिंग ऑफ EGM is necessary, then the directors will call. So for that the requisition must be signed and state the object for calling the meeting. If the directors within 21 days from the date of deposit of the requisition do not call the meeting, then the requisitionists may call the meeting within 3 months of depositing the requisition. अब मेरे ख्याल में सिचुएशन क्लियर हो गई है। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली, जो ऑर्डिनेंस है वो हमें ये क्लियरली कहता है कि EGM कॉल करने के लिए जब मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की, रिक्विजिशन दायर की, उस दिन से लेकर डायरेक्टर को कम से कम 21 दिन देने हैं फॉर कॉलिंग द EGM. But if the director is unable to call the EGM within 21 days, then the requisitionist call the EGM within 3 months of depositing the requisition. यानी 1 जनवरी से 21 तक के दिन डायरेक्टर के पास है, डायरेक्टर ने कॉल नहीं की, तो 1 जनवरी से लेकर 3 मंथ्स तक का टाइम है रिक्विजिशनिस्ट के पास, मेंबर्स के पास, फॉर कॉलिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM. Any reasonable expenses incurred by the requisitionist due to failure of the directors to convene a meeting shall be repaid by the company to the requisitionist. क्यों? कोई भी खर्चा जो कि रिक्विजिशनिस्ट को उठाना पड़ा कंपनी के फेलियर की वजह से, जाहिर है कंपनी उसको रीपे करेगी, मेंबर्स उसके जिम्मेदार नहीं है। सो कोई भी ऐसा खर्चा जो कि
डिले की वजह से, डायरेक्टर्स का मीटिंग ना बुलाने की वजह से मेंबर्स को कोई खर्चा अदा करना पड़ा, सो दैट एक्सपेंसेस shall be by the company and shall be repaid by the company to the requisitionists. The notice of the meeting is required to be sent to the members at least 21 days before the meeting. However, the registrar may authorize holding of a meeting at a shorter notice. यानी कभी ऐसे भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार शॉर्ट नोटिस पे EGM कॉल करे. So the notice of the meeting is required to be sent to the members. Usually हम 21 दिन पहले हमें नोटिस भिजवा देना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई हो मीटिंग तो फिर शायद इसमें कोई कमी बेशी हो जाए, 21 दिन से कम टाइम पे भी नोटिस चला जाए. वो तब होगा जब when the meeting is called at a shorter notice. So we have done the statutory meeting, the annual general meeting and the extraordinary general meeting. Now the topics we are going to start are different provisions, different qawaneen under the Companies Ordinance 1984 regarding the notices to be issued, regarding the quorum required for the meeting, regarding the शो ऑफ हैंड्स. हम बाज़-औक़ात कहते हैं ना जी, हाथ खड़ा करके इस चीज़ का फैसला दें. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि शो ऑफ हैंड्स क्या है, डिमांड फॉर पोल क्या होती है. ये पोलिंग से तो आपको पता है, ये वोट डालना. सो कभी ये होता है कि हम कहते हैं जी हाथ खड़ा करके एक चीज़ की हक में फैसला दे, एक बंदे के हक में फैसला दे. देखते हैं जी कितने लोग हक में हाथ खड़ा करते हैं, कितने लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, वो उसके अगेंस्ट है. और बाज़ औक़ात शो ऑफ हैंड्स के बावजूद भी कहते हैं कि जी पोलिंग करो, वोट कास्ट करो. सो दो तरीके होते हैं हमारे पास, शो ऑफ हैंड्स और पोलिंग. सो जिसमें हम वोटिंग करते हैं, वो वोट पोल करते हैं. सो ये डिफरेंट तरीके होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद आई विल फर्दर डिस्कस अबाउट द प्रॉक्सीज, कि प्रॉक्सी क्या होती है एंड व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रॉक्सीज. सो ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि अंडर लॉ है, अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है. उसको समझने की कोशिश करें. ये तमाम प्रोविजंस डील करती हैं उन तमाम मीटिंग्स के साथ जो कि मैंने अभी आपको को बताई हैं, अबाउट AGM, EGM एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग. सो दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड विद द मीटिंग्स. सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजंस एज टू नोटिस. नोटिस जो कि हम भिजवाते हैं मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, ऑफिसर्स ऑफ कंपनी को. सो नोटिस शैल स्टेट प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, कि कहाँ मीटिंग होगी, किस दिन होगी और किस वक्त होगी. हर नोटिस में जो हम मीटिंग बुलवाने के लिए भिजवा रहे हैं उसमें ये बताना ऑफ कोर्स जरूरी है. उसके बाद नोटिस शैल बी गिवन टू एवरी मेंबर और हिज और हर हायर्स. अगर मेंबर नहीं है तो उसके वरसा को नोटिस दो, एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. वेयर एनी स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन एनी AGM और EGM, कोई खास करारदाद पास होनी है, a copy of the proposed resolution should also be sent with the notice of the meeting. भाई हम कंपनी एक मीटिंग करा रही है और उस मीटिंग में चाहे वो AGM है या EGM है, मेंबर्स को जब हम नोटिस भिजवाते हैं और हमें पता है कि इस मीटिंग में हमने एक करारदाद पास करानी है किसी भी बात के लिए, चाहे सपोज हम कहते हैं जी कंपनी का नाम चेंज करने के लिए हम एक रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं. सो जो भी हम करारदाद पेश करने जाएंगे इस मीटिंग के अंदर, उस करारदाद की, उस प्रपोज्ड रेजोल्यूशन की को भी हमने मेंबर्स को भिजवाना है अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ मीटिंग, कि जी ये मीटिंग है, ये इस दिन
इस जगह पर और इस वक्त पर होगी, और इस मीटिंग के साथ साथ इस मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन भी पास होगी. द स्पेशल रेजोल्यूशन, when the resolution is of special resolution, and when it is to be passed in any AGM or EGM. So that should also be sent with the notice of the meeting. अब वो कौन सा बिजनेस है जिसको हम कुछ स्पेशल बिजनेस कंसिडर नहीं करते? द बिजनेसेस शैल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेसेस. वो होते हैं consideration of accounts, balance sheets, reports of the directors and the auditors, the declaration of dividend. जब हम मुनाफा यानी प्रॉफिट को डिक्लेयर किया जाता है, कंपनी जब प्रॉफिट करती है और उसके बाद जब उसको डिक्लेयर करती है, ये भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस है कंपनी का. द अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिटर्स is also the ordinary business for an AGM. The election or the appointment of directors is also the ordinary business for an AGM. Now, what is a quorum? Quorum होता है वो कम से कम तादाद जो हमें किसी भी चीज़ के लिए चाहिए होती है. मतलब जब हम कहते हैं कि जी 50 लोग हैं, इसमें से सपोज मैं कहती हूँ मेरी क्लास में आई हैव 50 स्टूडेंट्स एंड आई विल टीच टू द क्लास व्हेन द कोरम इज कंप्लीटेड, व्हेन एट लीस्ट 30 स्टूडेंट्स आर देयर, सो माय कोरम इज 30. कोई भी ऐसा कम से कम तादाद जो हम दे, जिसको हम फिक्स करें फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ एनी बिजनेस, फॉर एनी मीटिंग, तो हम कहते हैं दिस इज द कोरम, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी फिक्स्ड फॉर सम मीटिंग. सो वो होता है हमारा कोरम. कोरम मीन्स सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स of a company as is fixed as competent to transact business in a general meeting of members in the absence of other members. सारे मौजूद नहीं है, कोरम पूरा है क्योंकि जो तादाद हमने फिक्स की थी वो लोग मौजूद हैं, बस हमारा कोरम पूरा है, अब हम मीटिंग करेंगे चाहे तमाम हो या ना हो. In the absence of the other members, ये होता है कोरम. Any business transacted in a meeting without having a quorum shall be void. हम उसको null and void तस्वर करेंगे, हम उसको मीटिंग तस्वर ही नहीं करेंगे जिसमें कोरम भी पूरा नहीं है और आप मीटिंग करा रहे हैं. हमने कहा जी 7 डायरेक्टर्स हैं, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, 7 डायरेक्टर्स हैं, इनमें से कम 4 होंगे तो मीटिंग होगी. अब अगर हमने 3 डायरेक्टर्स के साथ भी मीटिंग कर ली, सो हम इस मीटिंग को कहेंगे void because the quorum is not complete. So any business transacted it in a meeting without quorum shall be void. What is the quorum in case of listed companies, in case of other companies other than listed companies, in case of single member companies? अब इस पे आपने गौर करना है. Okay, what is the quorum of different meetings? In case of listed companies, 10 members personally present, representing 25% voting powers, either on their own account or as proxies in the meeting. In case of any other company, 2 members. आपने देखा listed के लिए 10 members, listed जो नहीं है 2 members personally present, representing 25% of total voting powers, either on their own account or as proxies in the meeting. So ये कोरम होता है हमारे पास, जो हम कहते हैं कि जी 10 members, 2 members, ये हमारा कोरम है. And in case of single member company, single member present in person or proxy. Single member company के लिए quorum of meeting is 1. So 10 members in case of listed, 2 members in case of other companies other than listed, and in case of single member company, so the quorum is single member, 1 member.
If the quorum not present, if the quorum is not present at the meeting within half an hour from the date, from the time appointed for the meeting, what will happen? अब हमने मीटिंग कॉल की है, कंपनी हैज कॉल्ड द मीटिंग, लेकिन आधा घंटा इंतजार किया और कोरम फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद या तो मीटिंग डिसॉल्व होगी या मीटिंग एडजर्न होगी। डिसॉल्व होना ये होता है कि मीटिंग बर्खास्त कर दी गई, लोग चले गए, लोगों का कि मीटिंग नहीं होगी, बर्खास्त हो गई। एडजर्नमेंट ये होती है मीटिंग एडजर्न हो गई, यानी मीटिंग मुलतवी हो गई, किसी और डेट पर चली गई। सो अगर कोरम पूरा नहीं होता, आधा घंटा इंतजार करो लोगों का, मीटिंग के लिए आधा घंटे तक लोग अगर नहीं, आधे घंटे तक भी लोग नहीं आते, उसके बाद द मीटिंग शेल बी ईदर डिसॉल्व और एडजर्न। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट within half an hour and the meeting is dissolved, so that the meeting shall be dissolved if it is called on the request of members. अगर members की बुलाई हुई मीटिंग है तो वो dissolve हो जाएगी। अगर तो मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी अगर वो बुलाई गई होगी डायरेक्टर्स की तरफ से। डिसॉल्व कब होगी? बर्खास्त होगी if the meeting is called on the request of members. The meeting shall be adjourned if the quorum is not present and shall be shifted to the same day in the next week at the same time if the meeting is called by the directors. कुछ समझ में आई बात? सिंपल बात है। कोरम पूरा नहीं है, आधा घंटा इंतजार करेंगे, आधे घंटे तक भी लोग पूरे नहीं हुए, जो रिक्वायर्ड नंबर था, जो फिक्स किया गया था, उतने लोग नहीं आते, तो अगर मेंबर्स ने बुलाई है तो मीटिंग को डिसॉल्व करो, अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई है तो उसको एडजर्न करो, मुलतवी करो टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते का वही दिन जब जो आज का दिन है, और सेम टाइम यही टाइम रखो और इसको दोबारा उसको मुलतवी करो अगले हफ्ते के लिए। इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट अगेन एट द एडजर्न्ड मीटिंग, जो आपने अगले हफ्ते पे मीटिंग शिफ्ट की, एडजर्न मीटिंग जब अगले हफ्ते अब उसी टाइम पे, उसी दिन पर, उसी जगह पर हो रही है और फिर भी आधे घंटे के अंदर अंदर लोग नहीं आते, तो फिर क्या होगा? If the quorum is not present at an adjourned meeting within half an hour, the members present in the meeting, if not less than 2, shall be a quorum. यानी कम से कम 2 हो तो कोरम पूरा है, 2 से कम ना हो। फिर हम और लोगों का इंतजार नहीं करेंगे, because the meeting is the adjourned meeting. हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते इसको एडजर्न करके, मुलतवी करके इस हफ्ते पर ला चुके हैं, अब नो मोर एडजर्नमेंट। और अगर लोग कम से कम 2 बंदे भी है तो दिस इज द कोरम और मीटिंग कर ली जाए। हु शैल प्रिजाइड द जनरल मीटिंग? चेयरमैन of board of directors shall preside the general meeting, and in the absence of chairman a director shall preside. If none of the director present or directors are even present and the directors are actually they are unwilling to chair the meeting, members shall choose any member as a chairman and to preside the meeting. अगर डायरेक्टर विलिंग नहीं है, डायरेक्टर वो नहीं चाहता कि वो प्रेजाइड करे, तो फिर मेंबर जो हैं वो अपने में से किसी को चूज करेंगे एंड दैट मेंबर विल एक्ट एज अ चेयरमैन। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू शो ऑफ हैंड्स? हाथ उठा के इस करारदाद के हक में फैसला करें या इसके खिलाफ फैसला करें। सो ये होता है शो ऑफ हैंड्स। रेजोल्यूशन put to vote as any general meeting shall unless a poll is demanded, यानी पोल का डिमांड नहीं है तो फिर शो ऑफ हैंड से आप फैसला करा सकते हो।
अनलेस अ पोल इज डिमांडेड, यानी जब तक के ये कहा ना जाए कि जी पोलिंग करो, वोट कास्ट करो, शो ऑफ हैंड से आप अपना काम चला सकते हो. द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शेल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड्स. समझ में आई? दो तरीकों से हम एक चीज के हक में या उसके खिलाफ फैसला करते हैं, या तो पोल के जरिए या फिर शो ऑफ हैंड्स के जरिए. सो यूजुअली रेजोल्यूशन में आप वोट देते हैं शो ऑफ हैंड्स के जरिए. हाँ, अगर डिमांड किया जाए कि जी वोटिंग करो, पोल की डिमांड है, तो तब गो फॉर पोल, लेकिन यूजुअली हम शो ऑफ हैंड से ही रेजोल्यूशन को पास कराते हैं. प्रोविजंस रिलेटिंग टू वोट. members shall have votes proportionate to be paid up value of the shares held by him. यानी एक मेंबर के वोट डिपेंड करते हैं उसके डिपेंड्स ऑन दी पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम. मैंने आपको बताया था ना कि हर मेंबर के वोट डिपेंड करते हैं उसके शेयर्स पर. किसी का एक वोट होता है, किसी के ज्यादा होते हैं. सो द वोट ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम. In a company not having share capital, each member shall have one vote. On a poll, votes may be given personally or by proxy. अगर पोल वोट्स होंगे तो वो खुद वोट डालेगा या अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट करेगा. On show of hands, every member present shall have one vote. Provisions relating to poll. अब एक तरफ मैंने बात की शो ऑफ हैंड्स की, हाथ उठाकर एक करारदाद को पास कराओ. कौन कौन कंपनी का नाम जो हम ABC से XYZ करना चाहते हैं, कौन इसके हक में फैसला करते हैं. जिन्होंने हाथ खड़ाया, इसको हम शो ऑफ हैंड्स कहते हैं. इसका मतलब है ये लोग चेंज करना चाहते हैं. शो ऑफ हैंड्स चेयरमैन गिनेगा कितने लोगों ने शो ऑफ हैंड से उसके हक में फैसला दिया है, तो इस तरह नाम बदला जाएगा. खिलाफ लोग ज्यादा है तो नहीं बदला जाएगा. और अगर कहा जाए कि वोट पोलिंग की डिमांड हो तो फिर वोट पोल किए जाएंगे. सो व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पोल? द लिस्ट ऑफ दोज मेंबर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट एट द मीटिंग excluding those who stay away is called a poll. The members who actually cast their vote at the meeting is called a poll. Demand for poll, यानी बाजों का डिमांड भी होती है. रेजोल्यूशन पास हुई होती है, अभी शो ऑफ हैंड्स हुए होते हैं, रिजल्ट नहीं आया होता, बट शो ऑफ हैंड्स हुआ होता है. बट on a demand made by the certain persons or on the demand of a chairman of the meeting, the chairman or certain other person, they may order to take a poll before or on the declaration of the result of the voting of on any resolution on a show of hands. यानी जो चेयरमैन है मीटिंग का, वो या कुछ और लोग हैं जिनका मैं भी आपको साथ जिक्र करूंगी, वो लोग कह सकते हैं. किस वक्त इनको इख्तियार है कहने का कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, रेजोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया. दे मे रिक्वेस्ट, दे मे ऑर्डर टू टेक अ पोल. लेकिन कब ये ऑर्डर कर सकते हैं कि जी शो ऑफ हैंड्स हुआ है भी है, फिर भी वोट कास्ट कराओ? On the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands. यानी सिंपल बात यह है कि शो ऑफ हैंड्स के साथ साथ अगर चेयरमैन या कुछ और लोग चाहें तो डिमांड फॉर पोल भी ऑर्डर कर सकते हैं. अब और कौन लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी शो ऑफ हैंड्स बेशक हुआ हो लेकिन पोलिंग भी होगी, वोट भी होंगे? At least 5 members having the right to vote on the resolution and present in the person or by proxy in the meeting of public company. Any member or members present in person or by proxy having 1/10 of
टोटल वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन। सो ये वो लोग हैं जिनके डिमांड पर पोल हो सकता है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू पोल इन द मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी बाय एटलीस्ट वन मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। अगर जो मीटिंग है वो प्राइवेट कंपनी की मीटिंग है तो एक मेंबर जो है वो खुद अपनी मर्जी से या अपनी जगह किसी और को, where not more than 7 members having the right to vote on the resolution are present, at least 2 members present in person or proxy where more than 7 members having the right to vote on the resolution are present. So these persons, in case of a private company, they can demand for poll. मैंने आपको बताया कि डिमांड फॉर पोल होती है कुछ लोगों के कहने पर और मीटिंग के चेयरमैन के कहने पर। चाहे शो ऑफ हैंड्स पे रेजोल्यूशन पास हुआ भी हो लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, दे मे ऑर्डर टू टेक अ पोल बिफोर, उस करारदाद से पहले भी ये कह सकते हैं कि पोल हो, और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। Yes, they can demand the poll on the declaration of the result of the voting on any resolution on show of hands. Show of hands हो चुका है। अब ये कौन, ये कुछ खास लोग जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, अब वो लोग, और उसके साथ साथ अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी मैंने आपको बताया कि who are the persons who can demand for poll. Now the topic is under section 168. Time of taking poll. A poll demanded on the election of chairman or adjournment of meeting shall be taken forthwith. In all other cases, polls shall be taken at such time as chairman of meeting may decide. However, such time shall not be more than 14 days from the day from which it is demanded. यानी 14 दिन, कम से कम 14 दिन के अंदर अंदर आपने ये पोलिंग करानी है, वोट कास्ट कराने का जो आप कह रहे हैं या आपने कराना है, लेकिन इससे ज़्यादा का टाइम नहीं। When a poll is taken, the chairman or his nominee and a representative of the members demanding the poll shall scrutinize the votes. अब उन वोट्स की स्क्रूटनी होगी। Shall scrutinize the votes given on the poll and the result shall be announced by the chairman. यानी जब शो ऑफ हैंड्स कहते हैं तो उसी वक्त रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जब पोल होता है तो आपने उसके बाद कम से कम जो है 14 days. Such time shall not be more than 14 days. So the poll is poll 14 days के अंदर अंदर आपने पोल करवा लेना है। 14 days के अंदर अंदर आपने ये वोटिंग करा लेनी है, और जब वोटिंग करा लें तो उसके बाद वोट्स की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद चेयरमैन विल डिसाइड दी will announce the decision. Chairman shall have power to regulate the manner in which polls shall be taken. यानी चेयरमैन एक कुछ मैनर बताएगा, कुछ तरीक़ाकार बताएगा कि किस तरह पोलिंग होगी। Now what are proxies? Proxy is a person appointed to vote and speak on behalf of the member in general meeting. यानी जब मैं कहूँ कि जी मेरी जगह ये जो दूसरा मेंबर है ये बोलेगा मीटिंग में या मेरी जगह वोट डालेगा, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी। अ मेंबर कैन नॉट अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी. प्रॉक्सी मस्ट बी मेंबर unless articles permit to appoint a non-member as a proxy. यानी अगर मैं कंपनी की मेंबर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और को ये अपना ये राइट दूँ या मैं अपना ये तफवीज़ करूँ कि जी वो मेरी जगह जाके वोट डाले, तो उसको प्रॉक्सी कहते हैं, लेकिन यूजुअली मेंबर ही होना चाहिए। हाँ, अगर आर्टिकल्स कहे कि जी नॉन मेंबर हो तो तब नॉन मेंबर भी हो सकता है। A notice of general meeting of a company should state the right of the members to appoint proxy. Every notice of general meeting shall be accompanied by a proxy form.
proxy shall be lodged with the company at least 48 hours before the meeting. 48 घंटे पहले पहले आप बता दें कि जी ये मेरा प्रॉक्सी है, ये मेंबर है जो मेरी जगह वोट डालेगा या जो कि मेरे बिहाफ पे जो मीटिंग है उसमें बोलेगा. Proxy has certain rights, and section 161 says that proxy has the right to speak and vote at the meeting, to demand a poll, to abstain from voting on a question on which poll is demanded. Minutes of proceedings of general meeting and meetings of directors. Every company shall maintain a fair and accurate summary of all the proceedings of meetings of directors or members or committees. यानी अभी तक जितना आपके को मैंने मीटिंग्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि जी मीटिंग में नोटिसेस निकलेंगे तो उनके क्या प्रोविजंस होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में या कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर उसका क्या तरीकाकार होगा, नोटिस कब कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, फिर शो ऑफ हैंड्स क्या होता है किसी करारदाद को पास कराने के लिए, पोल क्या होता है, डिमांड फॉर पोल क्या है. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाता है. सो एवरी कंपनी शैल डेफिनेटली मेंटेन a fair and accurate summary of all the proceedings of meeting. मीटिंग की तमाम कार्रवाई को जो है उसको प्रॉपर उसको मेंटेन किया जाता है. और अगर नहीं किया तो उस सिलसिले में क्या होगा? The company and the officer concerned shall be liable to a fine not exceeding 5,000 and a further fine not exceeding 1,000 per day till the default continues. Signature of the chairman of meeting or chairman of next succeeding meeting shall be sufficient evidence of the proceeding. कि जी वाकई कंपनी मीटिंग की ये जो कार्रवाई जो रिकॉर्ड की गई है या जो मेंटेन की गई है कि ये कंपनी ने कि ये मीटिंग की कार्रवाई है, क्या ये वाकई इसका कोई एविडेंस है? सो सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन जी इस बात का सबूत है कि जी जो दिस इज द एक्चुअली द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन इज द सफिशिएंट प्रूफ, इज द सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स कि सारी कार्रवाई ठीक है, सच पे मबनी है और ये वाकई ऐसी बात ये हुआ है मीटिंग में. सो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर चेयरमैन का सिग्नेचर हो. The books containing the minutes of proceedings of the general meeting shall be open to inspection by the members. member जब चाहे वो आ सकता है, वो उन बुक्स को जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे उनको इंस्पेक्ट कर सकता है फॉर एटलीस्ट 2 hours ऑन ईच डे, 2 घंटे के लिए हर रोज विदाउट चार्ज ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. बिजनेस आवर्स में 2 घंटों के लिए तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है. Copy of the minutes of the meeting of the board of directors shall be furnished to every director within 14 days of the date of meeting. यानी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसके जो कॉपी है वो मुहैया की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और टू विदिन 14 days ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग. Representation at meetings of companies where a company is a member of another company. मेरी कंपनी है और मैं मेंबर हूँ दूसरे कंपनी की. सो आई मे ऑथराइज एनी ऑफ माई ऑफिशियल टू एक्ट ऑन माई बिहाफ, टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ दैट कंपनी बिकॉज मैं उस कंपनी की मेंबर हूँ. सो दूसरी कंपनी की मेंबर हूँ, मैं अपनी जगह किसी को भी ऑथोराइज कर सकती हूँ कि वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाके वो मीटिंग अटेंड करे. सच रिप्रेजेंटेटिव शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सेम पावर्स विच एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स ऑफ दैट अदर कंपनी हैज. रिप्रेजेंटेशन एट मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स. Where a company is a creditor of another company, it may authorize any of its officials or any other person to act as its representative. At any meeting of creditors,
other than company held under Companies Ordinance 1984. So क्या कहा मैंने आपको ये कहा कंपनी जो कि क्रेडिटर है दूसरी कंपनी की, दो कंपनीज है, एक कंपनी क्रेडिटर है और दूसरी कंपनी जो है वो उसने उस दूसरी कंपनी से उधार लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है. सो जो कंपनी क्रेडिटर है, इट मे ऑथराइज एनी ऑफ इट्स ऑफिशियल टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव. किस चीज में? एट एनी मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ दैट अदर कंपनी held under Companies Ordinance 1984 or any other company to which the company is entitled to attend in pursuance of any debenture, trust deed or other document. Such representation shall be entitled to exercise all such powers as the company has a member of that other company. Representation of federal government and provincial government. Being the member of the company, the federal government or provisional government may appoint any person to act as a representative at any meeting of the company or any meeting of any class of members of the company. Such persons shall be deemed to be a member of such company. Calling of a meeting by a commission. If default is made, if there is any thing wrong in the calling of statutory meeting, AGM, EGM on requisition of members, the commission has the power to call such meeting, and commission may give direction that one member present in person or by proxy at meeting shall be deemed to constitute the quorum. So, calling of a meeting by a commission is allowed if in case of default is made in calling of statutory meeting, AGM or EGM on requisition of members. The meeting conducted in accordance with the provisions of this section shall be deemed to be a properly conducted meeting of the company and the expenses shall be borne by the company. यानी इखराजात भी इस मीटिंग के कंपनी ही उठाएगी. लास्ट टॉपिक इज, क्या कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी ऐसे हालात होते हैं जिसमें कि हम जो प्रोसीडिंग होती है, कार्रवाई होती है जनरल मीटिंग की, उसको हम कहें कि जी ये इनवैलिड है, ये आपने जो मीटिंग की है, ये जनरल मीटिंग जो कॉल की है, ये इसकी तमाम कार्रवाई जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है इनवैलिड. सो कब और कौन the proceedings of the general meeting, who can declare them invalid? The court. The court has the authority to declare the proceedings of general meeting as invalid. लेकिन कब? On the petition of members, on the application of members having at least 10% voting powers, declare the entire proceedings or a part thereof invalid. यानी वो ये भी कह सकते हैं कि जी ये पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड है या इसका एक पार्ट इनवैलिड है. And direct holding of a fresh general meeting by reason of any material defect or omission in the notice or irregularity in the proceeding of the meeting which prevented members from using effectively their rights. यानी जब भी members of the company को ये लगे कि उनके जो rights है वो सही तरह से उनको नहीं मिल रहे, due to the irregularity in the proceedings of the meeting, the members are prevented from using their rights effectively. So then in this case, the members, when they are affected due to some material irregularity, they may file a petition to the court, and the members request the court through filing a petition that please hold a fresh general meeting. So such petition
shall be made within 30 days of such meeting. So simple बात क्या थी, कोर्ट मेंबर्स के कहने पे फ्रेश जनरल मीटिंग का ऑर्डर कर सकती है. वो ये भी कह सकती है कि तमाम मीटिंग को दोबारा करो. कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जी इस मीटिंग का ये पार्ट आप दोबारा करें. क्यों? क्योंकि मेंबर्स ने कोर्ट को पटिशन दायर की है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, उसमें उन्होंने ये ग्राउंड्स दिए इस बात की कि देयर इज सम मटेरियल डिफेक्ट और देयर इज सम ओमिशन, कोई गलती हुई है, कोई इरेगुलरिटी है इन कंडक्ट ऑफ मीटिंग. और फिर वो ये भी साथ में अगर वो ये कहते हैं कि जी the members are prevented from using their rights effectively, so they want the fresh general meeting. So the court in that case may order holding of fresh general meeting. And remember this thing that such petition, ये जो petition members दायर करते हैं, फाइल करते हैं, इसके लिए भी एक टाइम पीरियड होता है. ये नहीं कि members ने जब चाहा petition फाइल कर दी. Such petition shall be made within 30 days of such meeting. So our chapter, the meetings and proceedings of the company, is completed. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.